ہولڈنگ ٹیکس عوام کے ساتھ تاجروں کے بھی گلے پڑ گیا۔ غلہ منڈیوں کو دوسرے روز بھی تالے، آڑھتیوں کی جانب سے اجناس کی سپلائی مکمل بند۔ اوپن مارکیٹ میں اجناس کی قلت پیدا ہونے کا خدشہ۔ مزید تفصیلات فضیل احمد کی رپورٹ میں۔ ود ہولڈنگ ٹیکس کے خلاف غلہ منڈی کے آڑھتیوں کی جانب سے ہڑتال کے دوسرے روز ملک بھر کی طرح فیصل آباد کی غلہ منڈی بھی مکمل بند رہی۔ شہر بھر میں کریانہ کی دکانوں پر اجناس کی سپلائی بھی رک گئی۔ صدر مرکزی کریانہ ایسوسی ایشن میاں عامر شہزاد کا کہنا ہے کہ اگر حکومت نے غلہ منڈی کے آڑھتیوں کے مطالبات نہ مانے تو لمبی ہڑتال کا عندیہ دیا جا رہا ہے، جس سے اجناس کی قلت پیدا ہوگی اور عوام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ 3 دن کے اندر تو یہ ہوتا ہے کہ دکانداروں کے پاس 3، 4، 5 دن کا ریٹیلر کے پاس سٹاک اجناس موجود ہوتی ہیں۔ اس سے زیادہ سٹاک ریٹیلر کے پاس نہیں ہوتا، ہول سیلر کے پاس یا آڑھتی کے پاس یا امپورٹر ایکسپورٹر کے پاس ہوتا ہے۔ اگر جب وہ دورانیہ بڑھائیں گے پھر اجناس کی جو ہے وہ مارکیٹ کے اندر قلت آئے گی، پھر اس سینیریو کے اندر مختلف مافیا سرگرم ہوں گے۔ جو کریانہ ریٹیلر ہے جس کے پاس سٹاک نہیں ہوگا، ظاہری بات ہے کہ وہ سیل بند کر دے گا، اور جن لوگوں نے ان کو اپنے گوداموں کے اندر رکھا ہوگا اور اس نیت سے رکھا ہوگا کہ اب دورانیہ بڑھے گا ہڑتال کا، پھر اس کے اندر غریب کی پہنچ سے دال کا دانہ دور ہو جائے گا۔ آڑھتیوں کا مطالبہ ہے کہ دالوں اور چاول پر ود ہولڈنگ ٹیکس واپس لیا جائے۔ کیمرامین ایمان علی کے ساتھ فضیل احمد، سٹی 41 فیصل آباد۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی پر فیصل آباد کے شہریوں کے ملے جلے تاثرات۔ کسی نے اضافے کو معمولی قرار دیا تو کسی نے ریلیف کہہ دیا، اور کوئی بجلی مزید مہنگی ہونے کا دکھڑا سنانے لگا۔ کہتے ہیں جتنی مہنگائی ہے اس لحاظ سے قیمتوں میں کمی نہیں ہوئی۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ ڈپٹی کمشنر شنیوٹ محمد آصف رضا کی زیر صدارت پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کا اجلاس منعقد ہوا ہے، جس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنرز، اسسٹنٹ کمشنرز اور جو متعلقہ افسران ہیں وہ شریک ہوئے ہیں، اور جولائی میں پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کی کیا کارکردگی رہی ہے اس بارے میں ڈپٹی کمشنر کو بریف کیا گیا ہے۔ جولائی میں 68,268 جو ہیں پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کی جانب سے انسپیکشنز کی گئی ہیں۔ ان انسپیکشنز کی روشنی میں جو وائلیشنز سامنے آئی ہیں وہ 1804 ہیں، جبکہ اس بار 45,19,500 روپیہ وائلیشنز پر جرمانہ کیا گیا ہے، جبکہ 10 افراد کے خلاف مقدمات بھی درج کروائے گئے ہیں اور 342 افراد کو مختلف اوقات کے لیے گرفتار بھی کروایا گیا۔ ڈپٹی کمشنر چنیوٹ کا یہ کہنا ہے کہ تمام پرائس کنٹرول مجسٹریٹس اپنی فیلڈ کی جو ان کی رپورٹنگ ہے اس کو مزید مؤثر بنائیں، اور ایسے افراد جن کی انسپیکشنز ٹارگٹ سے کم ہیں ان کو وارننگ بھی دی ہے۔ ڈپٹی کمشنر کا یہ کہنا ہے کہ خود ساختہ مہنگائی کو روکنے کے لیے تمام جو اقدامات ہیں بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ عوام بھی کسی جگہ پہ اگر ریٹ لسٹ پر اشیاء دستیاب نہیں ہے تو اس کی شکایت کریں، اس پر فوری جو رد عمل دیا جا رہا ہے۔ بہت شکریہ وقار گھمن۔ حکومت ہمارے لیے پالیسی بناتی ہے اور اعتماد میں نہیں لیتی، تاجروں کا شکوہ۔ تاجر رہنما میاں ادریس کہتے ہیں کہ اعتماد میں نہ لینے کے باعث ٹیکس پالیسیاں اور سکیم ناکام ہو جاتی ہے۔ ٹیکس ہدف پورا کرنے کے لیے نئے ٹیکس دہندگان تلاش کرے۔ ٹیکس دہندگان کے گرد گھیرا تنگ کر کے ٹیکس نیٹ نہیں بڑھایا جا سکتا۔ مزید جانتے ہیں شیراز بٹ سے۔ جی بتائیے گا۔ تاجروں کا اس وقت فیصل آباد کے تاجروں کا ایک موقف جو حکومت کے سامنے رکھا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ تاجروں کے لیے کوئی اسکیم بنائی جاتی ہے، تاجروں کے لیے کوئی پالیسی بنائی جاتی ہے، لیکن تاجروں کو ہی اعتماد میں نہیں لیا جاتا، اور کوئی جو پالیسی بنائی جاتی ہے وہ کامیاب بھی اس وجہ سے ہی نہیں ہوتی کیونکہ تاجروں کو اعتماد میں نہیں لیا ہوتا، تاجروں کو لوپ میں نہیں لیا ہوتا۔ ہمارے ساتھ میاں ویسا موجود ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں اور تاجر دوست اسکیم کے حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں اس پر بات کرتے ہیں۔ میرے سے بتائیے گا، تاجر دوست اسکیم تاجروں کے لیے ہی لائی گئی ہے، فیصل آباد میں یہ کامیاب اس طریقے سے ہوتی نظر نہیں آ رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی مین وجہ تو بٹ صاحب یہی ہے کہ تاجروں سے پوچھا نہیں جا رہا کہ آپ جو ہے نا آپ کا بزنس کیا ہے، آپ کی ایکٹیویٹی کیا ہے اور آپ کی سیلز کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ شاپ کا سائز دیکھتے ہیں کہ بڑی شاپ ہے جی اس کو بڑا ٹیکس لگا دیں، شاپ چھوٹی ہے تو اس کو بھی ٹیکس لگا دیں۔ یہ نہیں پوچھتے کہ آپ جناب سیل کتنی کر رہے ہیں، آپ اپنی کچھ سیل شو کریں FBR میں، اس کے مطابق آپ کو ٹیکس لگایا جائے، اور اس معاملے میں کسی سے نہیں پوچھا جاتا۔ تاجر رہنما جتنے بھی ہیں ان سے کوئی ڈسکس نہیں کیا جاتا کہ آپ آئیں بتائیں کوئی مشورہ دیں تاکہ ہم اس کو لاگو کریں، وہ خود سے ٹھوس دیتے ہیں اور اسی حساب سے کلیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں، جو کہ بالکل تاجر دشمن پالیسی ہے، تاجر دشمن پالیسی ہے، اور خاص طور پر اس کو نگیٹ کیا جا رہا ہے، اور تاجروں کی جانب سے فیصل آباد کے تاجروں کی جانب سے حکومت وقت سے اپیل کی جا رہی ہے کہ تاجر دوست
स्कीम के अंदर अमेंडमेंट, उसमें तब्दीलियां करने की जरूरत है। और सबसे बड़ी तब्दीली इसमें यह है कि ताजरों को एतमाद में लिया जाए, ताजरों को बिठाया जाए, एक टेबल पर बैठ के गुफ्तगू की जाए, ताकि ताजर जो हैं वो अपना कोई दरमियानी रास्ता उनको बताएं कि किस तरीके से इस स्कीम को जो है वो कामयाब बनाया जा सकता है। इससे पहले MNST स्कीम आई, वो भी नाकाम रही, इसी वजह से रही क्योंकि ताजरों को एतमाद में नहीं लिया गया। बहुत शुक्रिया शिराज भट्ट। फैसलाबाद में रवा माली साल का पहला माह महकमा कस्टम्स की ड्यूटी वसूली के लिए सूदमंद रहा। गुज़िश्ता माली साल के मुकाबले रवा बरस जुलाई की टैक्स वसूली में 100% इजाफा। कलेक्टर्स कस्टम्स अस्तक अफजल के मुताबिक जुलाई में दरमदाद से कस्टम ड्यूटी की मद में 4.1 अरब रुपए आमदन हुई। मजीद तफसीलात जानते हैं उमैर अजमत से। जी बताइएगा। जी, माली साल 2024-25 के पहले महीने में महकमा कस्टम्स को फैसलाबाद में ड्यूटी और टैक्सेस की मद में कितनी आमदन हुई है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ कलेक्टर कस्टम्स अस्तक अफजल मौजूद हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? सनती शहर फैसलाबाद से कितनी कलेक्शन हुई है, और ये भी बता दीजिएगा क्या गुज़िश्ता माली साल के पहले महीने के मुकाबले में इसमें ग्रोथ हुई है या कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आया है? जी, बहुत शुक्रिया। साल 24-25 जो अब शुरू हुआ है, इसके जुलाई का महीना कंप्लीट हुआ है, और इसकी कंप्लीशन पे फैसलाबाद कलेक्ट्रेट, जिसके अंदर मुल्तान की टेरिटरी और फैसलाबाद दोनों शामिल हैं, हमने कस्टम ड्यूटी की मद में 4.1 बिलियन रुपीस जो है वो रेवेन्यू इकट्ठा किया है। और पिछले साल 23-24 के जुलाई के अख्तिताम पर 2.1 बिलियन था। तो यानी कि हम लोग तकरीबन 100% पिछले साल से कंपेयर करें तो इस साल जुलाई में पिछले साल से तकरीबन 100% ज़्यादा रेवेन्यू इकट्ठा कर पाए हैं। जी बिल्कुल। कलेक्टर कस्टम्स अस्तक अफजल कहते हैं कि चूंकि एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को टैक्सेस और ड्यूटियों में छूट दी जाती है, तो बैरून मुल्क से जो आने वाली इंपोर्ट्स हैं उनसे 4.1 अरब रुपए टैक्स वसूली हुई है, जो कि गुज़िश्ता माली साल के मुकाबले में करीबन 100% ज़ायद है। जी, उमैर अजमत अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। औसतन बिलिंग से बचने के लिए खराब मीटर्स को बरवक्त तब्दील किया जाए। नेपरा ने मुल्क भर की बिजली की तकसीमकार कंपनी समेत फेस्को को हिदायत जारी कर दी। 15 रोड में खराब मीटर्स तब्दील करने की डेडलाइन दे दी गई। मजीद जानते हैं अवैस अली से। अवैस, बताइएगा। आज बिल्कुल औसतन बिलिंग से बचने के लिए ख़राब मीटर्स की आज जो बिलिंग है वो बर वक्त करना होगी। इसी वाले से नेपरा की जानिब से तमाम तर बिजली की तकसीमकार कंपनीज़ को हदायत जारी कर दी गई हैं, और फेस्को को भी वाज़ेह तौर पर हदायत जारी की गई हैं कि औसतन बिलिंग से बचने के लिए सार्फिन के ख़राब मीटर्स जो हैं वो बर वक्त तब्दील किए जाएँ। और इसी हवाले से नेपरा ने फेस्को को सार्फिन के ख़राब मीटर्स 15 रोज़ के अंदर अंदर तब्दील करने की हदायत जारी की हैं। किसी भी सार्फ का अगर मीटर ख़राब हो जाता है तो 15 रोज़ में बिजली की तकसीमकार कंपनीज़ उनको तब्दील करने की पाबंद हैं। नेपरा की जानिब से फेस्को को अहकामात भी जारी कर दिए गए हैं, और फेस्को को तमाम तर जो ख़राब मीटर्स हैं उनकी जल्द तब्दीली की भी जो है वो हदायत दी गई हैं। इसी वाले से फेस्को काम का यही कहना है कि नेपरा की हदायत पर ख़राब मीटर्स की तब्दीली जो है वो बर वक्त की जा रही है, और इसी हवाले से फेस्को में जो ख़राब मीटर्स हैं वो माहानावार भी तब्दील किए जा रहे हैं, और ख़राब मीटर्स की तब्दीली के हवाले से नए मीटर्स भी ख़रीदे जा रहे हैं ताकि सार्फिन को जो सहूलियात हैं वो फराहम की जा सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया अवैस अली। महंगाई ने बच्चों से बचपन छीन लिया। खिलौनों की कीमतों में होशरबा इजाफा। समुद्री में साइकिल, वॉकर्स और खिलौना गाड़ियां पहुंच से बाहर होने लगी। वालिदैन परेशान। मजीद जानते हैं वकास जमील की रिपोर्ट। शदीद महंगाई में बच्चों को बहलाना भी मुश्किल हो गया। साइकिल, वॉकर्स, खिलौना गाड़ियां खरीदना बच्चों और वालिदैन की ख्वाहिश, मगर कीमतें कुव्वते खरीद से बाहर। टैक्सेस की भरमार से अशिया 500 से 1000 रुपए तक महंगी हो गई। मार्केट में 7000 वाली साइकिल 8000, 2000 वाला वॉकर 2500, जबकि 3000 वाली गाड़ी 4000 रुपए में फरोख्त होने लगी। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਲਈ ਦੀ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ 200 400 500 ਰੁਪਏ ਪੀਸ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਮ ਕਰੇ और अवाम को रिलीफ दिता जाए। शहरियों का कहना है कि कीमतों में इजाफा होने से बच्चों की ख्वाहिशात पूरी करना मुश्किल हो चुका है। आए रोज कीमतों में इजाफा से साइकिल, वॉकर, खिलौना गाड़ियां खरीदना ख्वाब बन गया है। बच्चों के लिए खिलौने वगैरह लेने आए थे, लेकिन बच्चों की मतलब के साइकिल और वॉकर की प्राइस में इतना ज़्यादा इजाफा हो चुका है कि गरीब आवाम की पहुंच से बहुत ज़्यादा दूर है।
हमारी हुकूमत से अपील है कि इन चीज़ों में भी थोड़ा सा रिलीफ दे। टैक्सेस में कमी और अशिया की मुकामी सतह पर तैयारी से न सिर्फ महंगाई में कमी की जा सकती है बल्कि वालिदैन के लिए बच्चों की ख्वाहिशात पूरी करने में भी आसानी हो सकती है। कैमरा टीम के साथ वकास जमील, सिटी 41 समंदरी। अब आपको बताएं, टोबा टेक्सिंग में रजाना रोड पर घड़े की मरम्मत का आगाज ना हो सका। 4 घंटे पहले सीवरेज पाइपलाइन बैठ जाने से घड़ा पड़ा था। घड़ा पड़ने से करीबी आबादी के मकीनों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसी पर मजीद बात करते हैं मुबशिर हसन नकवी से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग में सीवरेज की ज़ेरे ज़मीन लाइनें बोसीदा हो चुकी हैं और ये वजह है कि आए रोज़ रजाना रोड पर लाइन बैठ जाती है और गड्ढे पड़ते हैं, जिसको इंतजामिया पूर्ण करने में ही मसरूफ नजर आती है। आज एक बार फिर दोपहर के करीब रुजाना रोड पर एक गड्ढा पड़ा। इस गड्ढे की गहराई की बात कर ली जाए तो 10 से 12 फीट के गहरा गड्ढा है जो रुजाना रोड के बिल्कुल सेंटर में मौजूद है। हैवी ट्रैफिक यहाँ से गुजरती है और ये गड्ढा पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से बिलाशुबा ट्रैफिक की रवानी में भी मुश्किलात का सामना है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल निशान लबा मसीह ने इस मुकाम का दौरा भी किया। उन्होंने मुतलका जो अफसरान थे उनसे मालूमात भी हासिल की, जिस पर बताया गया कि सीवरेज की पाइपलाइन जो है वो बसीदा हो चुकी है और ये वजह है कि आए रोज़ ये बैठ जाती है। आज इस मुकाम पर ही लाइन बैठी और चंद रोज़ पहले चंद कदम के फासले पर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने भी ये लाइन बैठ गई थी और तकरीबन 5 दिन के बाद इस गड्ढे को पूर्ण किया गया था। तमाम इस वक्त जो हरियाणा रोड पर हाउसिंग कॉलोनी के करीब आबादी है उसको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस जगह पर जो बैरियर लगा दी गई हैं, ट्रैफिक को मुतबादिल जगहों से गुजारा जा रहा है। तमाम करीब 4 घंटे गुजर चुके हैं लेकिन अभी तक जो है वो इस गड्ढे की मरम्मत नहीं हो सकी है, बल्कि इसके काम का आगाज़ ही नहीं हो चुका है। गड्ढा पूर्ण नहीं हो सका। गुज़श्ता रात भी इससे चंद कदम के फासले पर एक और गड्ढा पड़ा था जिसमें एक शख्स के गिरने की भी तात मौसूल हुई थी। तमाम शहरियों का कहना है कि सीवरेज की पाइपलाइन बसीदा हो चुकी हैं, आए रोज़ बैठ जाती हैं। ये ना हो कि आने वाले किसी दिन में बड़ा कुछ सानहा रूनुमा हो जाए। इंतजामिया को, मुंतखब मामी नुमाइंदों को इस हवाले से कोई हिकमत अमली प्लान करना होगी, इस सीवरेज की पाइपलाइन को तब्दील करना होगा, क्योंकि आए रोज़ लाखों रुपए के बिल जो है वो अदा करवाए जाते हैं म्यूनसिपल कमेटी से सिर्फ लाइन की मरम्मत के सिलसिले में। तमाम 4 घंटे से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है लेकिन अभी तक इस गड्ढे की मरम्मत का काम का आगाज़ नहीं हो सका। जी मुबशिर हसन नकवी सूरत हाल से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद डिवीजन में 24 घंटों के दौरान गैस्ट्रो और डायरिया के 1097 मरीज सरकारी अस्पतालों में दाखिल हुए, जबकि खसरा के 8 मुश्तबा मरीज रिपोर्ट हुए। तफसीलात इस रिपोर्ट में। सनती शहर में मौसमियाती तब्दीलियों के लगातार हमले, गैस्ट्रो और डायरिया के मरीजों में इजाफा। 24 घंटों के दौरान 690 अफराद ने सरकारी अस्पतालों का रुख कर लिया। मुतासरा मरीज तहसील हेडक्वार्टर अस्पतालों, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पतालों और टीचिंग अस्पतालों में रिपोर्ट हुए। खसरे के 3 नए मरीज रिपोर्ट हुए, जिससे जिला भर में मजमूई तादाद 1353 हो गई। चिन्योट में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान गैस्ट्रो और डायरिया के 73 मरीज रिपोर्ट हुए। डीएचक्यू अस्पताल में 12, 2 डीएचक्यू अस्पतालों में 23, जबकि पीएचयूज और आरएचसीज में 38 मरीज आए। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में खसरे का 1 मरीज रिपोर्ट हुआ। टोबा टेक्सिंग डीएचक्यू अस्पताल समेत मुख्तलिफ अस्पतालों में डायरिया और गैस्ट्रो के 246 मरीज रिपोर्ट हुए। झंग डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में गैस्ट्रो और डायरिया के मरीजों की तादाद 88 से जायद हो गई, जबकि खसरे के 4 मरीज सरकारी अस्पताल में दाखिल हुए।